Okay. नाउ मेरा जो मटेरियल है उसमें पेज नंबर 23 पे आ जाओ. ये सिक्स्थ वन. कैन यू सी द सिक्स्थ वन? Now, sixth one previously you have done was you had given two effects. Now we are going to do a new format now, which will be our last step to our next level of journal entries. Now over here what we will be doing is for every transaction we will be giving two effects. We will be identifying कि ये जो effect है उसमें what will be the name of the account. एंड देन वो जो अकाउंट है उसका टाइप क्या है और फिर उस अकाउंट को हमें डेबिट करना है या क्रेडिट करना है. सो हियर यू विल हैव टू मेक अ न्यू फॉर्मेट. सो you have to use scale and pencil and make a new format. I'll show you the format what you have to make. Now see this Excel file what I have made. This type of format you have to make. Now you don't have to write the questions. I have written the questions because I'll be explaining you along with the transaction. So I did not shuffle from one screen to another. So I have written the question. What you have to do is you have to draw the lines and make this format: serial number, two effects, name of account, type of account, debit rupees and credit rupees. So you have to make a format like this. तुम क्या करोगे? यू विल राइट लाइक दिस. वन के बाजू में ही यू विल राइट ए एंड देन बी. एंड देन यू विल राइट बी. ओके. तुम्हें अभी ये वन ए और बी अभी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. ओके okay? तुम सिर्फ ये हेडिंग बना लो. नाउ कितना जगह छोड़ना? यू सी योर नोटबुक. टू इफेक्ट्स में यू डोंट हैव टू राइट द क्वेश्चंस. Okay, so you just have to write, for example, purchase goods. So goods comes in, cash goes out. So you don't have to write the questions. So you have to only write what comes in, what goes out, who is the receiver, who is the giver. Generally 3 words. So leave space accordingly. Name of account, we have to write the name: purchase account, sales account, cash account, bank account, furniture account, vehicle account, building account, Ajay account, Vijay account. And then type of account we will write real, personal, nominal. So only one word. And then debit rupees and credit rupees. So debit का जो amount होगा वहां पे हम debit column में लिखेंगे और credit amount credit column में. So make the format. I give you 5 minutes for it. Make 2 pages. एक पेज पे ये फॉर्मेट बना लो: सीरियल नंबर, टू इफेक्ट, नेम ऑफ अकाउंट, टाइप ऑफ अकाउंट, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज. और दूसरे पेज पे भी ऐसा ही फॉर्मेट बना लो. गॉट इट? अकॉर्डिंगली जगह छोड़ना. आई हैव टोल्ड यू व्हाट विल कम. ओके, इफ यू वांट आई विल जस्ट राइट अ सैंपल फॉर यू. ये तुम्हें लिखना नहीं है, ये जो तुम्हारा रेफरेंस के लिए है. ओके okay? For example, goods comes in, cash goes out. Goods comes in if we are buying, purchase account, cash account. अकाउंट में अगर जगह नहीं है तो A/C भी तुम लिख सकते हो. ओके, बिकॉज मेरा जो स्क्रीन है ओके वो हॉरिजॉन्टल है, तुम्हारा जो पेज है वो वर्टिकल है. देन टाइप ऑफ अकाउंट, परचेज अकाउंट कम्स इन, सो रियल अकाउंट. कैश गोज आउट, ऑल्सो रियल अकाउंट. Debit amount, say for example this transaction was of 3,000, so 3,000, 3,000.
Accordingly, you can leave lines. All ready with the format? Keep Yes. the Yes, sir. textbook in front of you, and let's start with the first transaction. Now, started business with goods rupees 4,000. Now यहाँ पे we are starting business with goods of rupees 4,000. So effect A, business में क्या आ रहा है? Goods आ रहा है, तो goods comes in. लिख दो effect A, goods comes in. goods को अंडरलाइन करो. what यहाँ पे कोई goes out तो है नहीं, तो what goes out नहीं आया. कौन लेके आया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए goods? who bought the goods in the business? owner. Owner is the receiver. ओनर को अंडरलाइन करो. सर गिवर नहीं आएगा. सर गिवर आएगा. Owner is the giver. I'm sorry. Owner is the giver. Owner को अंडरलाइन करो. Now, name of the account. अब ये goods आए हैं, हमने खरीदा बेचा नहीं है, तो हम इसको goods account ही लिखेंगे. और ओनर लेके आया. When owner is the giver, तो क्या कहते हैं हम इसको? What's the name of the account we will give? Capital. Capital. Yes, very good. Capital account. So capital account. सर मेरा डाउट सर. बोलने मानो. सर पहला इफेक्ट बीमा કેમ એવું આવ્યું કે ઓનર ઇઝ ધ ગિવર કેમ આવ્યું? इनके એવું લખ્યું છે ટ્રાન્ઝેક્શનમાં started business with goods rupees 4,000. એટલે કોને બિઝનેસ કર્યો goods 4,000 રૂપિયા? શું સર? આ બિઝનેસ કોને ચાલુ કર્યો? started business કોણ ચાલુ કરે? ઓનર હે. હા, એટલે ઓનર goods લઈને આવ્યો બિઝનેસ. હા. giver. Got it? ઓકે હા. Now ધ્યાન આપજો please. Type of account. Now you all know the rule. Comes in, goes out है तो it's a real account. So type of account real. For goods comes in, तो goods account के पास लिख दो real. And owner is the giver. Receiver giver कौन हो सकता है? कोई person, तो personal account. Type of account real and personal. Now debit. Now you know the rule. Debit what comes in. You know the rule. Debit what comes in. तो debit में 4,000 rupees. 4,000. और नीचे owner is the giver, तो credit rupees में भी 4,000. उसके बाद पूरा अंडरलाइन कर दोगे तुम इसको, जैसे मैंने अंडरलाइन किया है. ओके, तो पता चलेगा फर्स्ट ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया. सर ये आपने ऊपर नीचे क्यों लिखा? क्योंकि A effect is comes in and B is the giver. अच्छा, क्या ऊपर नीचे? यू आर टॉकिंग ऑफ अमाउंट. यस. अमाउंट में ऐसा है कि जब तुम यहाँ से जर्नल एंट्री में जाओगे, ओके, तो उसमें जर्नल एंट्री के फॉर्मेट ऐसा है कि डेबिट और क्रेडिट के कॉलम अलग है. तो डेबिट कॉलम में डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट कॉलम में क्रेडिट का अमाउंट. ऑब्वियसली गुड्स कम्स इन, तो गुड्स अकाउंट में जाएगा 4,000, तो उसके सामने 4,000 लिखा है. एंड ओनर इज द गिवर, तो उसके सामने 4,000 लिखा है. अंडरस्टूड नाउ? ओके. ओके, तो
जो इफेक्ट के सामने उसका अमाउंट आएगा. नाउ borrowed a loan of 10,000 from Radhika. Now borrowed a loan. So what comes in? Cash comes in. Underline cash. Now loan किसके पास से मिला, यानी कैश किसने दिया? राधिका ने. So Radhika is the giver. अंडरलाइन करो राधिका को. नाउ ध्यान देना प्लीज, ध्यान देना प्लीज. कैश कम्स इन, तो नेम ऑफ द अकाउंट इज कैश अकाउंट. कैश का हिसाब हम कैश अकाउंट में रखेंगे. राधिका इज द गिवर, पर यहाँ पे राधिका हमारा कोई कस्टमर या सप्लायर, डेटर या क्रेडिटर नहीं है. राधिका से हमने लोन लिया है, तो हमें यहाँ नेम ऑफ अकाउंट में लिखना पड़ेगा राधिका's लोन अकाउंट. ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो. अगर ऐसा लिखा होता ट्रांजैक्शन में, borrowed a loan of ₹10,000 from Radhika at 10% interest, ऐसा लिखा होता ट्रांजैक्शन में, तो यहाँ पे हम राधिका's लोन नहीं लिखते, हम लिखते थे 10% राधिका's लोन अकाउंट. नाउ किसी भी अकाउंट में परसेंटेज दिया है, तो दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फुल ईयर. इज दिस क्लियर? अभी तुम्हें ये लिखना नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. तो यहाँ पे वी विल नॉट जस्ट राइट राधिका, वी विल राइट राधिका's लोन अकाउंट, क्योंकि राधिका कोई और भी नाम का हो सकता है, कोई हमारा कस्टमर या सप्लायर का भी नाम राधिका हो सकता है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये वो राधिका है जिससे हमने लोन लिया है. समझ में आ गया सबको? सो नेम ऑफ अकाउंट में बी केयरफुल. देन कैश अकाउंट कौन सा टाइप का अकाउंट है? रियल. एंड राधिका नाम है, राधिका इज द गिवर, सो पर्सन. नाउ डेबिट, cash comes in, debit what comes in? 10,000 debit column, and credit column में आ जाएगा 10,000. नेक्स्ट, किसी को कोई डाउट है इसमें? Any doubt? Should I proceed now? Okay. Yes. Open a bank account with Bank of Baroda by depositing ₹6,000. तो हम बैंक में गए और हमने बैंक में अकाउंट खुलाया. कैसे खुलाया? By giving 6,000 to the bank. तो इफेक्ट भी मुझे सबसे पहले पता चल गया. तो कैश गोज आउट. तुम ऐसे भी कर सकते हो, बट इसको ए में मत लिखना, बी में ही लिखना, बिकॉज आई होप यू अंडरस्टूड. बी इज क्रेडिट एंड ए इज डेबिट, तो उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा. नाउ कैश गोज आउट, हमने कैश दिया, पर किसको दिया वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा. तो बैंक इज द रिसीवर. नाउ अंडरलाइन कर दो बैंक को. अंडरलाइन क्यों करते? क्योंकि इसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि अकाउंट का नाम क्या आएगा. सो नेम ऑफ द अकाउंट, यू कैन राइट बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट ऑल्सो, और यू जस्ट राइट बैंक अकाउंट. कैश गोज आउट, कैश अकाउंट. बैंक इज द रिसीवर, पर्सनल. कैश गोज आउट, रियल. Bank is the receiver, bank account, personal account. Debit the receiver, debit column 6,000. Cash goes out, cash account, real account. Cash goes out, credit what goes out, credit column 6,000.
Next, purchase goods of 10,000 from Bharat stores on credit. So दिया ही है, नाम भी दिया है और लिखा भी है on credit. So effect है what comes in, goods comes in. हम ऐसे भी कर सकते कि पहले एक ही इफेक्ट खत्म कर दो. अगर तुम्हें ऐसा करना है तो गुड्स कम्स इन, गुड्स को अंडरलाइन करो. अब ध्यान दो प्लीज, नॉक 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 नॉक, ध्यान दो. नाउ गुड्स कम्स इन, पर ये जो गुड्स आ रहा है वो क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने खरीदा है. वी हैव परचेज, सो हियर वी विल यूज परचेज अकाउंट, ताकि हमें पता चले कि पूरे साल हमने कितना परचेज किया है. Then goods comes in real account, amount is 10,000, debit 10,000. Effect भी किससे परचेज किया? भारत स्टोर्स. तो भारत स्टोर्स is the giver. Name of the account underline कर दो भारत स्टोर्स को. Name of the account is Bharat Stores account. Personal. Credit 10,000. क्यों credit? Credit the giver, debit the receiver. Debit what comes in, credit what goes out. Fifth one. Paid salary of 1500 to accountant. So accountant है, उससे हमने काम कराया और उसको सैलरी हमने दिया. So effective what comes in. But now instead of writing what comes in, we all know it's our expense. So we will directly write salary expense incurred. Salary expense incurred. Underline करो salary को. And effect भी cash goes out because of the word pay. इसमें accountant या accountant का नाम रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काम कराया, पैसा दिया, कुछ भी लेन देन बाकी नहीं है. Now name of the account, salary account. Cash goes out, cash account. Salary खर्चा है हमारा, तो what is Nominal. what is the type? Nominal. Nominal. Cash goes out, real. So salary expense 1500, 1500. Sixth, purchased furniture of rupees 3,000 for cash. Now purchase kiya furniture, so furniture comes in. Underline furniture. Cash goes out. Underline cash. Now यहाँ पे हम परचेज अकाउंट क्यों नहीं लिखेंगे? Why we will write furniture account? Can anyone tell me? Because we have purchased furniture by giving cash. तो ऊपर भी हमने गुड्स परचेज किया, बाय गुड्स परचेज किया है, और किसी से किया है तो हमने तो गुड्स अकाउंट यूज किया है. तो यहाँ क्यों? सर वो क्रेडिट पे लिया था या कैश पे लिया? नो नो नो. सर क्योंकि Asset. नेम दिया है कि क्या? कहाँ से हमने लिया. फर्नीचर फिक्स एसेट है. वो असेट है इसलिए. यानी ये हमारा धंधा नहीं है कि फर्नीचर खरीदना, फर्नीचर बेचना, तो वो हमारा असेट है. इसके लिए वी राइट फर्नीचर अकाउंट. अगर हम फर्नीचर के डीलर है और हमने फर्नीचर कराया है, तो हम फर्नीचर अकाउंट नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वो फर्नीचर हमने बेचने के लिए खरीदा है.
तो हम परचेज अकाउंट यूज करेंगे। तो ये कंसेप्ट पता चला तुम्हें कि गुड्स जो है ना, गुड्स आर एनीथिंग व्हाट वी आर बाइंग विद एन इंटेंट टू सेल एंड अर्न प्रॉफिट। बट यहाँ ऐसा लिखा है परचेज फर्नीचर, तो यहाँ पे फर्नीचर जो हमने खरीदा है वो यूज करने के लिए, बेचने के लिए नहीं है, तो वो हमारा गुड्स नहीं है, इसके लिए हम परचेज अकाउंट यूज करेंगे नहीं। इज दिस क्लियर? अगर तुमने ऐसा किया तो अभी तुम्हें ये पता नहीं चलेगा, बट ये अकाउंट्स का बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल का वायोलेशन है। ये बहुत बड़ा गलती है। ये कोई सिर्फ मार्क्स रिलेटेड गलती नहीं है या चेंज अकाउंट कर दिया नहीं है, ये बहुत बड़ा गलती है। जब तुम फाइनल अकाउंट सीखोगे लास्ट स्टेज, तब तुम्हें ये पता चलेगा कि ये मिस्टेक का कितना बड़ा इम्पैक्ट आता है। तो तुम्हें याद रखना है कि जो गुड्स है उसके लिए हम परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, गुड्स विथड्रॉन, गुड्स डिस्ट्रॉयड, गुड्स स्टोलन, गुड्स गिवन एज सैंपल्स यूज करेंगे, गुड्स रिलेटेड अकाउंट। बट अगर हमने फर्नीचर खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, मशीनरी खरीदा, तो हम परचेज अकाउंट नहीं, हम वो असेट का नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ फर्नीचर है तो वी राइट फर्नीचर अकाउंट। इज दिस कंसेप्ट क्लियर? गलती मत। Yes, sir. Now why I am saying this to you is because यहाँ पे students गलती करते हैं। Maybe when I was also a student, I would have made such mistake. So you be careful. Okay? Now cash account. Cash goes out, cash account. Furniture account. Furniture आया, खरीदा, बेचा, किसी को दे दिया. Furniture comes in, furniture goes out, cash goes out. Again real account. Now furniture comes in, debit what comes in, debit column 3000, cash goes out, credit what goes out, credit column 3000. Next, purchase equipments of rupees 3000 from जय विजय स्टोर्स। नाउ देखो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है क्योंकि ऑफिस इक्विपमेंट दिया है और नाम भी दिया है। तो फर्स्ट लेट्स राइट व्हाट कम्स इन। तो ऑफिस इक्विपमेंट कम्स इन, अंडरलाइन ऑफिस इक्विपमेंट। नाउ यहाँ पे खरीदा है पर ऐसा नहीं दिया है कि वी हैव मेड द पेमेंट, सो इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन बिकॉज नेम इज गिवन। तो नेम इज जय विजय स्टोर, सो हु इज द गिवर? जय विजय स्टोर इज द गिवर। अंडरलाइन जय विजय स्टोर्स। नाउ ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, जगह नहीं है तो A/C कर सकते हो तुम, और जिससे खरीदा उसका नाम भी लिखना पड़ेगा। सो जय विजय स्टोर्स अकाउंट। ऑफिस इक्विपमेंट इज रियल because we bought it, purchased it, and Jai Vijay Stores is a person, so personal account, artificial person. Now तुम्हें पता चला यहाँ पे हम purchase account क्यों use नहीं करेंगे? All of you understood this? Okay? तो word purchase दिया है तो purchase account लिख दो, ऐसा मत करना भाई, ऐसा मत करना। तुम्हें क्या करना है? सर नहीं पता चला। क्या नहीं पता चला। यहाँ पे 7 ट्रांजैक्शन में किसने पूछा ये डाउट? शुभंकर। शुभंकर रीड द ट्रांजैक्शन। परचेज ऑफिस इक्विपमेंट्स ऑफ ₹3000 फ्रॉम जय विजय स्टोर। क्या कहा? परचेज क्या? ऑफिस इक्विपमेंट। हाँ, यानी ये ऑफिस इक्विपमेंट ऐसा लिखा है कि हमने बेचने के लिए खरीदा है? नहीं। तो इसमें हम
परचेज अकाउंट यूज कर सकते हैं। मतलब असेट है, फिक्स्ड असेट है, इसलिए नहीं करने का है। हाँ, और ये असेट है, कैसे पता चला मुझे कि ये फिक्स असेट है? क्योंकि बेचने के लिए नहीं लिया है। हाँ, और अगर यहाँ पे ऐसा दिया होता परचेज गुड्स फ्रॉम जय विजय स्टोर्स, तो फिर हम कौन सा अकाउंट यूज करते? तो वो करंट असेट होता फिर। अरे मैंने परचेज। पूछा कौन सा असेट है, मैंने बोला कौन सा अकाउंट? परचेज। 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 अगर ऐसा दिया है कहीं पे परचेज द वर्ड गिवन इज गुड्स, तो वी यूज परचेज अकाउंट। इज दिस क्लियर? यस। ऐसा दिया है कि परचेज फर्नीचर फॉर एग्जाम्पल, ओके, तो ये जो फर्नीचर है, तो यहाँ पे हम परचेज अकाउंट, भले परचेज वर्ड दिया हो, पर यहाँ पे वी हैव टू यूज फर्नीचर अकाउंट ओनली। इज दिस क्लियर? यस। So just don't look at this word and write the name of the account. You have to see कि परचेज पर क्या परचेज किया, and that is why accounts का नियम है कि पहले ट्रांजैक्शन पढ़ोगे, फिर तुम उसको समझोगे, उसके बाद इफेक्ट्स बनाओगे और नेम ऑफ अकाउंट दोगे। पता चला? हाँ। All of you, is the doubt clear? Anyone else has any doubt? Yes. तो अगर परचेज व्हीकल दिया होता तो कौन सा अकाउंट यूज करते? परचेज अकाउंट या व्हीकल अकाउंट? परचेज। व्हीकल। सॉरी सॉरी सर। कौन बोला ये? कर बोला, शुक्र व्हीकल। हो जा और 10 बार उठक बैठक कर। गलत आंसर दे रहा है तू। तेरे को मैंने क्या बोला है? शुभंकर, तेरे को हाँ। ऐसा बोला है कि पहले सी तू एक पहले बिफोर यू स्टार्ट रीडिंग अ ट्रांजैक्शन टेक अ डीप ब्रेथ। कैसे डीप ब्रेथ लेते? ओके, रिलैक्स हो जा, ट्रांजैक्शन पढ़ आराम से, ओके, उसका हर एक वर्ड को समझ, उसके बाद तू सोच, देख क्या हो रहा है, फिर आंसर दे। Is this clear? हाँ। तो यहाँ पे अगर परचेज व्हीकल दिया होता तो हम कौन सा अकाउंट यूज करते थे? व्हीकल। वो बेचने के लिए नहीं लिया इसलिए। अब गलत आंसर दिया तूने, तो मैं तो बोलूंगा वहां पे ही तू 10 कान पकड़ के उठक बैठक कर और मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा और मेरे ओके। में यूट्यूब में तू देखेगा सालों साल। ओके। ओके, जस्ट जोकिंग, ओके, बट ये प्लीज गलती मत करना, नहीं तो ये जोक सही में इसको मुझे इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो जरा सोच के जवाब दो। उसमें क्या होता है शुभांकर कि अपने अगर गलत जवाब देते हैं ना, तो उसको अगर लाइटली ले लिया तो वो गलत जवाब ही हमारा कंसेप्ट बन जाता है। फिर एग्जाम में जो सिली मिस्टेक होती है ना, वो इसी वजह से होती है। तो अभी से हमें अपने आप को ट्रेन करना है। ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, ऐसे कितने सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनके माइंड में ऐसा आया होगा। ये सबके लिए है, इट्स नॉट फॉर यू इन पर्टिकुलर। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? Okay, so let's proceed. Now, over here, real account. Now, office equipment of 3000 comes in. Debit what comes in? Debit column 3000. Jai Vijay store is the giver. So कितने का उसने इक्विपमेंट दिया? 3000 का. So credit column, credit the giver. Now यहाँ पे ऐसा ट्रांजैक्शन दिया है कि जयमीन took away goods of ₹150 for personal use. Now ये जो पर्सनल यूज के लिए लिया है, कौन ले सकता है गुड्स फॉर पर्सनल यूज? ओनर। ओनर। took away goods लेके चला गया, तो बिजनेस से गुड्स गोज आउट। पर किसने, कौन लेके गया, उसका हिसाब रखना पड़ेगा हमें। तो जयमीन लेके गया। जयमीन कौन है? ओनर। तो ओनर इज द रिसीवर। अंडरलाइन द वर्ड ओनर।
what goes out? Goods goes out. Now, owner is the receiver. What will be the name of account? Owner जितना भी बिजनेस में आता है उसको हम कहते हैं कैपिटल, और जितना भी बिजनेस से लेके जाता है उसको हम कहते हैं ड्राइंग. So write drawings account. And goods goes out, तो goods goes out. अब ध्यान दो, इसमें एक typical point है. I'll once again go to the white screen. Important इसको mark करना. Now, whenever goods are withdrawn from the business by the owner, तो एक है drawings. दूसरा, goods are going out, पर goods are going out के लिए instead of using goods withdrawn for personal use account, हम कौन सा अकाउंट यूज करेंगे? नाउ ध्यान दो, ये जो गुड्स ओनर लेके गया वो कौन से गुड्स लेके गया? जो हमने खरीदे थे. यू अग्री? जो हमने परचेज किए थे. तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस अकाउंट गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल अकाउंट, हमने जो खरीदा था उसमें से ही कम हो रहा है. सो वी विल यूज परचेज अकाउंट. We will use purchase account. Is this clear? See, हमने जब गुड्स खरीदा तो हमने कौन सा अकाउंट यूज किया? परचेज अकाउंट. हमने जब खरीदा तो हमने कौन सा अकाउंट यूज किया? परचेज अकाउंट. अब ओनर ये गुड्स लेके जा रहा है, तो किसमें से ये गुड्स लेके जा रहा है? जो हमने ऑलरेडी खरीद के रखा है उसमें से ही लेके जा रहा है. क्या ये हम ओनर को बेच रहे हैं? No. क्या ये हमारा परचेज रिटर्न है? No. तो हम इसमें किसको क्रेडिट करेंगे? जो खरीदा था उसमें से ही लेके जा रहा है. तो खरीदा था तो हमने परचेज अकाउंट यूज किया, तो वो जब लेके जा रहा है तो भी हम परचेज अकाउंट यूज करेंगे. इज दिस क्लियर? Yes. नाउ सी, प्रीवियस टेक्स्ट बुक अगर तुम देखोगे, तुम्हारे ब्रदर सिस्टर्स ने अगर पुराना सिलेबस पढ़ा है इसके पहले वाला, तो उसमें हम इंस्टेड ऑफ परचेज अकाउंट वी यूज टू यूज गुड्स विथड्रॉन अकाउंट, गुड्स स्टोलन अकाउंट, गुड्स गिवन एज सैंपल अकाउंट. तो हम अलग अलग अकाउंट यूज करते थे. पर अभी का जो टेक्स्ट बुक है तुम्हारा, उसमें ये सब अकाउंट नहीं यूज करना है. उसमें ऐसा ऑथर ने इंटरप्रिटेशन किया है कि सामान जे खरीद्यो छे एमांथी ज लई जाय छे. तो જ્યારે સામાન ખરીદ્યો તો પરચેઝ અકાઉન્ટ આપણે રેકોર્ડ કર્યું. તો જ્યારે એમાંથી કંઈ પણ સામાન જાય છે તો અગેન વી રેકોર્ડ એઝ પરચેઝ અકાઉન્ટ. ઇઝ ધીસ ક્લિયર? तो तुम कंफ्यूज मत हो जाना अगर तुम्हारे स्कूल के टीचर ने गुड्स विथड्रॉन अकाउंट यूज किया है तो वो भी राइट है. पर अभी हम तो हमारा गुजरात बोर्ड का टेक्स्ट बुक ही फॉलो करेंगे. तो गुजरात बोर्ड के टेक्स्ट बुक में परचेज अकाउंट यूज करना है हमें. इज दिस क्लियर? सो गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, गुड्स स्टोलन, गुड्स डिस्ट्रॉयड, सबके लिए हम यूज करेंगे परचेज अकाउंट. तुम्हें याद है मेरा लेक्चर, उसमें भी मैंने कहा था जब हमने गुड्स के अकाउंट लिखे थे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, तो मैंने कहा था ये सब परचेज में से डिडक्ट होता है. यू रिमेम्बर? इफ यू डोंट रिमेम्बर, यू वॉच माय लेक्चर, दैट इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड. और यू बिलीव मी कि हाँ सर ने ऐसा कहा ही होगा. तो तब मैंने ये कहा था और मैंने कहा था आगे ये हमें काम आएगा. तो अभी के लिए इतना याद रखना, whenever goods are withdrawn, goods are stolen, goods are destroyed, goods given as samples, goods given as donation, we all will use purchase account. Got it?
Okay, so let's go back to our Excel, to my Excel and your notebook. Now, over here, goods goes out, we use purchase account. Now, owner is the receiver, drawings, so personal account, goods goes out, real account, owner is the receiver, debit the receiver, 150, goods goes out, credit what goes out, 150. Next, received commission of rupees 500 in cash. Now, commission मिला तो हाथ में क्या आया? कैश आया. So cash comes in. Underline कर लो कैश को. ये कमीशन कोई हमें ये 500 रुपीस क्यों दे रहा है जिसको हम कहते हैं कमीशन मिला? क्योंकि हमने कोई सर्विस दिया है. तो instead of now writing service goes out, you can directly write commission income on. Underline commission. Any doubt? Anyone? All of you understood this? अब हम service comes in goes out नहीं. सर हाँ. એની સર્વિસ ગોઝ આઉટ લખીએ તો કઈ વાંધો આવે કે ના આવે? વાંધો આવશે એટલે નહીં લખો. આ સ્ટેજ પર નહીં લખવાનું. ઓકે, આ સ્ટેજ પર તમારે નેમ ઓફ ધ એક્સપેન્સ ને નેમ ઓફ ધ ઇન્કમ જ લખવાનું. મે સર્વિસ કમ્સ ઇન સર્વિસ ગોઝ આઉટ તમને ઇનિશિયલી કન્સેપ્ટ બિલ્ડિંગ માટે કરાવ્યા હતા સો ધેટ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ વોટ્સ હેપનિંગ. હવે તમારે ડાયરેક્ટલી આ જ લખવાનું. વેન અ ક્વેશ્ચન ઇઝ asked, you have to give two effects, identify types of accounts, okay, mention name of account. At that time you don't write service comes in service goes out, you write expense incurred, loss incurred, commission income on, commission on, income on, profit on, gain on. Is this clear? The thakkar pen na khais please. There are better things in life to eat. Okay, Priya, you also. Now, cash comes in. So cash account. थोड़ी देर पहले बेटा. Now, commission income earned. The name of the account is commission account. See, accounts we have learned in various stages. તો હવે તમે જે સ્ટેજ પર છો એમાં તમે સર્વિસ કમ્સ ઇન ગોઝ આઉટ માઇન્ડમાં રાખજો, પણ તમારે લખવાની જરૂરત નથી કેમ કે નોમિનલ અકાઉન્ટ છે આ. નહીં તો પાછું કમ્સ ઇન ગોઝ આઉટ લખશો તો તમે ભૂલથી રિયલમાં લખી દેશો. Is this clear? So be careful. Now, cash account is a real account, commission account is a nominal account. Cash comes in 500 debit column, commission income 500 credit column. Draw line, close the transaction. You have to draw the line so that the transaction is closed. तुम्हारा नेक्स्ट वीक जो टेस्ट होगा उसमें यही फॉर्मेट करना है. इसमें मैं एक और मॉडिफिकेशन दूंगा जो कल से हम उसको फॉलो करेंगे. Now, received goods of rupees 120 as free samples. Now, received goods as free samples. बताओ फ्री में किसी को कुछ भी मिला तो क्या है ये? नॉन इकोनॉमिक Economic activity. Now, transactions, right? We are extremely happy to mention it as a non-economic transaction.
Next, open a bank account by depositing cash. We have already seen a similar transaction. So bank में पैसा दिया, तो bank is the receiver. Cash goes out. Underline कर दो बैंक अकाउंट, बैंक को अंडरलाइन इसके लिए कर रहे हैं ताकि इजी हो जाए हमारे लिए आइडेंटिफाई करना कि नेम ऑफ द अकाउंट क्या आएगा. बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट पर्सनल, कैश अकाउंट रियल. ऐसे जब तुम लिख रहे हो तो तुम्हारे माइंड में ये सब तुम्हें रिसाइट करना है. 10,000 10,000 डेबिट, 10,000 क्रेडिट. Is it done? Should I go to the next one? Purchase goods of rupees 5,000 and paid amount by check. So purchase goods comes in underlined goods. Amount paid by check. So check किसी को दिया है तो पैसा जाएगा from our bank account. तो bank balance decrease. So bank is the giver. तुम इसका कंसेप्ट ऐसे ही याद रखोगे कि बैंक बैलेंस इंक्रीज, बैंक इज द रिसीवर. बैंक से पैसा गया तो बैंक इज द गिवर, बैंक बैलेंस डिक्रीज. Goods comes in, we are buying goods, so purchase account. Bank is the giver, so bank account. Purchase account real, bank account personal. Debit 5,000, debit what comes in, credit the giver, credit 5,000. सर अगर बैंक का नाम दिया हो तो भी हम लोग बैंक अकाउंट लिखेंगे तो चलेगा ना? हाँ चलेगा चलेगा, not to worry. Now paid life insurance premium by check, उसमें अमाउंट नहीं दिया है, write a amount rupees 12,000. Write a amount by rupees 12 of rupees 12,000. नाउ मुझे बताओ किसका लाइफ, ओनर का या बिजनेस का? ओनर. तो ये बिजनेस के बैंक अकाउंट से, तो ये पैसा कौन लेके जा रहा है? ओनर लेके जा रहा है. तो वी राइट ओनर इज द रिसीवर. ओनर इज द रिसीवर. And underline owner. And paid by a check, so bank balance decrease, so bank is the giver. Owner is the receiver, drawings account, bank account. Owner is the receiver, always drawing. Owner is the giver, always capital. Now, drawings is personal, bank is also personal. दोनों personal खेल रहे. Owner is the receiver, debit the receiver 12,000 and credit the giver 12,000. Close it. Not the book, the transaction. Gave a check of rupees 1,000 to Naina Bank towards amount payable. यानी amount payable यानी मुझे नैना बैंक को amount पे करना था. पहले का पैसा जो बाकी था, अब मैंने उनको चेक दिया. तो चेक किसको मिला? नैना बैंक को मिला. तो लिखना पड़ेगा नैना बैंक
is the receiver. नैना बेन is the receiver of the check. पैसा जाएगा हमारे बैंक अकाउंट से, बैंक बैलेंस will decrease, so bank is the giver. Naina Bain account, bank account, both personal. Debit the receiver 1000, credit the giver 1000. Fifteenth transaction. Bank sanctioned overdraft of rupees 2000 but not yet paid. Now, Non-economic. हाँ बैंक ने सैंक्शन किया है, जैसे तुम्हारे पेरेंट्स ने सैंक्शन कर दिया नेक्स्ट मंथ तुम्हें 500 रुपीज मिलेंगे, पर अभी तक वो पैसा हाथ में आया नहीं है, तो इट इज अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन. Next one, customer Nilesh gave rupees 5000 which is deposited in the bank. तो जैसे ही ये चेक आया हम गए बैंक में और बैंक में ये चेक डिपॉजिट किया, सो बैंक इज द रिसीवर, इससे हमारा बैंक बैलेंस विल इंक्रीज. सो इफेक्ट ए, बैंक इज द रिसीवर. Who is the giver? ये चेक किसने दिया उसका नाम भी लिखना पड़ेगा. So Nilesh is the giver. Bank account, Nilesh account. Bank account personal, Nilesh account भी personal. Debit the receiver, debit side 5000, Nilesh is the giver, credit 5000. Seventeenth, withdrew cash, market important for exam. Market important for exam. Very important, this one. Withdrew cash of rupees 1000 from bank for miscellaneous expense. Now miscellaneous expense यानी क्या, हमने अलग अलग छोटे छोटे खर्चे करने के लिए कैश विड्रॉ किया. क्या हमने कैश विड्रॉ करके खर्चा कर दिया, ऐसा दिया है कि मनी स्पेंड, एक्सपेंस इनकर्ड. एक्सपेंस इज नॉट येट इनकर्ड. इज दिस क्लियर? सो यहाँ पे बैंक में गए और पैसा विड्रॉ किया, सो इफेक्ट है व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन. अंडरलाइन कैश, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस. ओके, नाउ पैसा कहां से गया, बैंक से गया, बैंक बैलेंस डिक्रीज हो गया, सो बैंक इज द गिवर. अंडरलाइन बैंक. कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट. Debit what comes in 1000, debit, bank is the giver, credit 1000. सेवेंटीन तक ही था. ओके, सो यहां तक हो गया सबका. गो थ्रू द ट्रांजैक्शंस.
See if you have any doubt, difficulty. All of you understood the concept. Now, purchase or sales, अभी इसमें ये सब में सेल्स गुड्स सोल्ड था नहीं, ओके, गुड्स रिटर्न था नहीं, वो तुम्हें होमवर्क के सब में मैंने दिया है, जो तुम्हें लेक्चर में देख के करना है। मेरा जो रिकॉर्डेड लेक्चर है, तो वो मैं अभी लेक्चर के बाद मैसेज करूंगा कि तुम्हारा होमवर्क क्या है। ओके, नाउ ये तुम्हें मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है। ये जो फॉर्मेट है उसमें अच्छा एक मॉडिफिकेशन है, वो कर लो, कल से तुम ऐसा फॉर्मेट बनाओगे। मॉडिफिकेशन ये है कि यहाँ पे ही तुम लिख दोगे डेबिट/क्रेडिट। तो क्या होगा, टाइप ऑफ अकाउंट में यहाँ पे यू विल राइट डेबिट, यहाँ पे यू राइट क्रेडिट, तो इजी हो जाएगा डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम में अमाउंट लिखना। ठीक है, तो कल से जब तुम फॉर्मेट बनाओ तो ऐसा फॉर्मेट बना लेना, आज ही बना लेना बुक में, और ऐसे मैक्सिमम सम्स हमें प्रैक्टिस करने हैं, बिकॉज ये तुम्हारा बेस बनता है फॉर द चैप्टर जर्नल एंट्री। इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स transactions are recorded for the first time by writing a journal entry. So journal entry is actually the language of accountancy, how we write or record a transaction. It is always in the form of journal entries. ऐसे कोई statements लिखते नहीं है, journal entry लिखते हैं। तो ये तुम मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे, जिससे लिए जिसके बेस पे जर्नल एंट्री विल बिकम एक्सट्रीमली इजी, क्योंकि जर्नल एंट्री में हम लिखते हैं नेम ऑफ अकाउंट, डेबिट क्रेडिट एंड डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। तो हम उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट बिफोर वी जंप टू दैट हमें हर एक ट्रांजैक्शन का टू इफेक्ट्स पता होना चाहिए। टू इफेक्ट से ही हमें पता चलता है कि नाम क्या आएगा अकाउंट का, और उसको डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। तो इसका मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे, कम से कम 200-250 ट्रांजैक्शन तो तुम्हें खुद करना है, खुद करना है। यानी ऐसा नहीं कि सर ने कराया, मैंने तो खुद लिखा ना तो एक बार हो गया। नो, खुद करना यानी खुद बुक ओपन करके खुद सम्स निकाल के प्रैक्टिस करना है। अभी तुम जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अकाउंट्स इजी हो जाए। इट इज सेड द मोर यू वर्क ड्यूरिंग पीस द लेस यू ब्लीड ड्यूरिंग वॉर। तो अभी तुम जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारे लिए जर्नल एंट्रीज इजी हो जाएगा। जर्नल एंट्री करेक्ट होने लगेगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे, और अकाउंट्स विल बी अ वेरी इजी सब्जेक्ट फॉर यू एंड यू विल रियली स्टार्ट लविंग दिस सब्जेक्ट। इज दिस क्लियर? नाउ तुम ऐसा फॉर्मेट डेबिट क्रेडिट वाला जो अभी मैंने नया इंक्लूड किया है वैसा फॉर्मेट बना के रख लो, 5-7 पेज। ठीक है, अब कल हम फिर ऐसा ही ट्रांजैक्शंस करेंगे, थोड़े टिपिकल ट्रांजैक्शंस करेंगे, तो उसके बाद फिर हम जाएंगे टू जर्नल एंट्रीज। नाउ नेक्स्ट वीक का जो टेस्ट लूंगा उसमें भी तुम्हें ऐसा फॉर्मेट बना के इफेक्ट्स देना है, नेम ऑफ अकाउंट लिखना है, टाइप ऑफ अकाउंट लिखना है, इसका प्रॉपर प्रैक्टिस करना। ठीक है, होमवर्क मैं तुम्हें अभी सेंड करता हूँ थोड़ी देर में।